So, hi guys, this is Prasoon Vashne, and I am a hustler and a quick learner who is always eager to learn new things. Now, in this example or in this question, I'm gonna share, I am gonna solve, and I'm gonna explain the terms BFS and DFS with some explanation of code. Okay, BFS is, as we all know, breadth first search, and DFS is depth first search. So we are gonna see with what, with code. Actually, we can say that it is for my practice just. Okay, you can also see the code and also also see what is going on. Okay, now let's start. What is BFS? Okay, let us see if we have this example. Okay, and we make this yes. Okay, one, two, three, four, five, six. Suppose that we have this graph. Okay, this is a graph. Okay, and if you can see in my code, the graph is mentioned by this. Okay, uh, this is this graph. Okay, this is the I can say that mm, uh, adjacency matrix representation. Okay, representation. Now, okay, we see that. Now we are going to see algorithm. What is BFS? Let me explain first. Okay, so yeah, first we initialize a queue of size what, 8 to 10 of size this कितने वर्टेक्स हैं और कितने, तो उससे एक ही ज़्यादा बनाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो को हम कंसिडर नहीं करेंगे और हम इसको इनिशलाइज करेंगे, वी विल इनिशलाइज टू ज़ीरो एंड वी विल लेम इट एज visited array. Okay, now we initialize this. We are seeing the BFS first. Okay, BFS. What is BFS? We are seeing that. Okay, now first we make this queue. You can see that we make this queue. Okay, now we initialize the queue to 0. Okay, now what we are gonna do that, see it carefully. Okay, okay, I am just, if I can copy this so that I can explain you much better. Okay, now let's go. So yeah, we have this uh this what, इसको थोड़ा सा एंटर कर दिया है, ठीक है, टेस्ट करना. So start with any vertex. I'm saying start with any vertex. Suppose that, okay, this is a BFS array and this is a Q array. This is a Q. Okay, suppose we are starting with 1. Okay, visit 1 and आप जैसे ही आप विजिट करोगे, as soon as you visit, make that element and queue in the queue. तो आपने वन विजिट किया, you visited the one, then you entered this, yeah, you enqueue this one to the queue. Okay, we have this queue now again. Okay, that's the first thing, that's the initialization. Okay, in our code you can see that we first initialize this. Okay, this
Okay, see out. This is the initialization point. Okay, start. And okay, now how we gonna do that? This is the initialization part. You can clearly see that. अब now जैसे ही हम अगली वर्टेक्स विजिट करेंगे, मतलब कि जो वन की जो वर्टेक्स हैं, जो वन की जो जितनी भी एडजॉइनिंग, जितने भी एजेस के एडजॉइनिंग वो हैं वर्टिसेस, यहाँ पे क्या है 2 और 3, दे आर 2 और 3, एड एक्सप्लोर देम टू एंड एड इट टू द BFS। ओके, मतलब प्रिंट करते जाओ। तो अगर हम इसको ढंग से लिखें दोबारा से, तो इस समय BFS में क्या है, इसमें BFS में है 1। Now explore it, explore the BFS, मतलब 1 के जो एडजॉइनिंग है, सपोज वी एक्सप्लोर 2। ओके, प्रिंट 2। जैसे एक्सप्लोर करा यहाँ पे लिख दिया 2 क्यू में, ठीक है। जैसे ही 2 को वो किया क्या, एक्सप्लोर, सबसे पहले तो ऐसे देखो, यहाँ अब इनिशिएशन पार्ट था, इनिशिएशन पार्ट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले उसके बाद हम करेंगे 1 को DQ करेंगे, 1 को हम DQ करेंगे, 1 को DQ करा, और जो जिसको हम DQ करेंगे उसके जितने भी वर्टेक्स है सबको विजिट कर देंगे। तो यहाँ पे 2 है तो वी विजिट 2, और यहाँ पे 3 है तो वी विजिट 3, ठीक है। ओके, और यहाँ विजिट कैसे हो रहा है, आप यहाँ देखिए, यहाँ पे हम उसको निकाल रहे हैं, यहाँ से हमने 1 को निकाला, 1 को निकाला, और कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा आपका, ये जो आपका, क्योंकि ये देखिए आपने 1 को निकाला, ग्राफ में देखिए आपने 1 को निकाला, ठीक है। तो 1 के करस्पॉन्डिंग जितनी भी एजेस हो सकती हैं, 2, 3, 4, 5, 6, ये सबको चेक करेगा। इस लूप की मदद से हम, ये जो लूप है, दैट्स द लूप, वेयर इट इज, हाँ दैट्स द लूप, इस लूप की मदद से हम सबको हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये सबको चेक कर रहे हैं, और हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या एज है, दिस इज द कंडीशन टू चेक, क्या इज देयर एनी एज, एंड if that vertex is unvisited, so GU means initially U is 1, ठीक है, यहाँ पे 1 आया, and V1, तो 1 of 1 तो 0 होता है, और 1 of 2 means there any age between 1 and 2, yes, और क्या 2 visited है, नहीं, 0, तो यहाँ पे क्या होगा, BFS में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और जो विजिटेड जो 2 है, मतलब 2 को हम दिखा देंगे विजिटेड कि 2 विजिट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ विजिटेड एरे में अगर हम जाएं तो ऑलरेडी ये 1 हो चुका है, और 2 भी ये यहाँ पे 1 हो चुका है। मैं यहाँ पे कट के लिख देता हूँ, ठीक है। इट वुड बी बेटर अगर मैं यहाँ इरेज करके लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये 1 हो चुका है, ये 1 हो चुका है। नाउ इट विल एक्सप्लोर 3, इस 3 व्हाट, इस 3 is unvisited, yes, and there is age between 1 and 2, yes, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। और जैसे 2 एक्सप्लोर हो गया उसको क्यू में डाल दो, जैसे 3 एक्सप्लोर हुआ उसको क्यू में डाल दो, ये हम यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे 2 विजिट हुआ तो क्यू में डाल दे रहे हैं, 3 विजिट हुआ उसको क्यू में डाल दे रहे हैं, ठीक है। नाउ हो गया ये। उसके बाद दोबारा आओ, उसके बाद क्यू, उसके बाद DQ करो, यहाँ पे जो आया है 2 निकाला, अब 2 को एक्सप्लोर करो, 2 में क्या क्या है, 2 में 1 होगा लेकिन 1 विजिटेड है, 2 का 4 होगा, क्या 4 विजिटेड है, नहीं है, तो यहाँ 4 डाल दो, और यहाँ भी क्यू में 4 डाल दोगे, ठीक है। ऐसे ही ये चलता जाएगा, समझ रहे हो, ऐसे ही ये चलता जाएगा। तो क्यू में हम सबको एक्सप्लोर कर लिया, देन वी विल DQ 3 वी विल DQ, देन एक्सप्लोर 3, ओके। इस दे कैसे एक्सप्लोर करेंगे, पहले 1 पे चेक करेंगे, क्या 1 के संग एज है, हाँ है, 1 के संग एज है, लेकिन क्या वो विजिट हो चुका है, वो विजिट हो चुका है, तो हम यहाँ नहीं डालेंगे BFS में। क्या 2 के संग एज है, 2 के संग एज नहीं है, 3 के संग 3 की एज ही नहीं होती, 4 के संग एज है लेकिन वो विजिट हो चुका है, ठीक है, विजिट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे हम 1 डाल देते हैं, 1 कर देते हैं, और कुछ है ही नहीं, 5 के संग एज ही नहीं, 6 के संग एज ही नहीं है, कुछ आएगा नहीं,
तो फिर हम 4 को DQ करेंगे, 4 के संग 1 को चेक करेगा, 2 को चेक करेगा, 3 को चेक करेगा, 5 विजिटेड नहीं है तो 5 डालेंगे, 6 विजिटेड नहीं है 6 को डालेंगे। ऐसे ही जैसे 5 वेट हुआ तो 5 यहाँ डाल देंगे और 6 वेट हुआ 6 यहाँ, ये यहाँ तक हमेशा। तो ऐसे करके हमने एक्सप्लोर कर दिया। जो इसका BFS निकल के आया है वो निकल के आया, हमने स्टार्टिंग नोड 1 रखी है तो 1, इफ़ वी पुट द स्टार्टिंग नोड टू 1 देन द corresponding BFS for this graph is 1 2 3 4 5 6. Okay, now that's the point, and we have to take in this loop till this queue is empty. Remember, this queue is empty. जब तक हमें करना है जब तक queue empty ना हो जाए, ठीक है। Now it's good. Now that's the BFS. Now we will see DFS. What is DFS? Depth first search. Depth first search. Okay. मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, you can manage it. Okay, but I'm trying to do depth first search now. Okay, how we gonna do that? Let us see. First we will copy this जो हमने यहाँ करा था। Okay, हमने यहाँ कॉपी कर लिया, इसको थोड़ा बड़ा कर दो, ठीक है। थोड़ी स्पेस की कमी पड़ जाती है, ठीक है। सो वी विल यूज, वहाँ पे हमने DFS में हमने क्यू यूज़ करी थी, यहाँ पे हम वी विल यूज हेयर स्टैक फॉर श्योर, वी विल यूज स्टैक नाउ। ओके, here we do iterative process, iterative, and here we do recursive process. How we gonna do that? Let us see. Okay. First start and from any vertex. Let us start 1. हमने 1 से स्टार्ट किया और ठीक है 1 से हमने स्टार्ट किया और 1 को ही हमने जैसे 1 से स्टार्ट किया, जैसे 1 से हम DFS पे प्रिंट कर रहे हैं, ये DFS है, ठीक है। जैसे हम ये प्रिंट कर रहे हैं तो हमने जैसे 1 को डाल दिया DFS में, we will put DFS1 here. Now we will explore in neighbors and put it into the stack. We will explore it neighbors. हमने इसके neighbors को एक्सप्लोर किया तो 2 आया, ठीक है। हमने DFS में भी 2 डाल दिया, लेकिन अब 2 मतलब 1 के सारे नेबर, वी विल नॉट विजिट ऑल द नेबर्स ऑफ 1. ओके, दैट द डिफरेंस बिटवीन BFS एंड DFS. तो अब क्या करेंगे, 2 को हमने एक्सप्लोर नहीं करेंगे, सस्पेंड कर देंगे, 1 का एक्सप्लोरेशन सस्पेंड कर देंगे और यहाँ पुट कर दिया। ऐसे 2 का एक्सप्लोरेशन सस्पेंड कर देंगे और 2 को यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ। अब कहाँ जाए हम जाएंगे 4 पे, वी विल गो टू 4, हम 4 पे गए, ठीक है। 1 2 4, इसका DFS यही आ रहा है क्या? से 1 2 3 4, हाँ 1 2 4, ठीक है। तो हमने यहाँ प्रिंट कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे इसको जगह बना दे रहे हैं ताकि चीज़ों को आसानी हो जाए दिखने में। कोई नहीं, ठीक है। अब 4 की हम वो जाएंगे वर्टेक्सेस पे, 4 की नेबर्स पे। तो 4 का नेबर क्या है? 4 का नेबर इज 3, तो हम 3 पे 4 को यहाँ प्रिंट तो करो। 4 को हमने प्रिंट किया, फिर 3 पे गए और 3 को अपने स्टैक में डाल दिया, ठीक है। देखो ये चीज़ हम कैसे कर रहे हैं, देखो ये हम ऐसे कर रहे हैं। फर्स्ट यहाँ पे ये चीज़ करनी ज़रूरी होती है, यहाँ पे हम वो बनाएंगे वेजिटेबल, यहाँ लेकिन यहाँ स्टैटिक बनाया क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये रिकर्सिव हो रही हैं और उसकी वैल्यू बार बार चेंज ना हो, पूरे फंक्शन कॉलिंग में, पूरे रिकर्सिव कॉलिंग में इसकी एक ही कॉपी रहे, इसलिए हमने स्टैटिक बनाया, ठीक है ना। रिकर्सिव 1 2 3 4 1 0 1 2 3 4 5 6। ओके, वी इनिशियलाइज टू इट 0, हमने इनिशियलाइज करा 0 से, ठीक है।
तो हम चेक करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग वर्टेक्स 0 से हम चेक कर रहे हैं, तो क्या वो वर्टेक्स विजिट हो चुकी है? नहीं हो चुकी, क्यों 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो नहीं हुई। ठीक है, नहीं हुई तो अंदर जाओ। जब नहीं हुई तो जाहिर सी बात है उसको प्रिंट कर दो। हमने प्रिंट कर दिया, जैसे मैं बताया उसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, उसको हमने प्रिंट कर दिया। अब जो कि क्योंकि वो अनविजिटेड थी, तो उसको पूरा एक्सप्लोर करो। तो हमने उस एज को पूरा एक्सप्लोर किया है, और एक्सप्लोर करने के साथ हमने देखा क्या जो वर्टेक्स है 2, मतलब जो इसकी वर्टेक्स मिल, क्या एज है? हाँ है, 1 और 2 के बीच में एज है। और क्या विजिटेड है 2? नहीं है, पहले तो 1 को यहाँ पे विजिट कर दिया। क्या 2 विजिटेड है? नहीं है। तो अगेन वी गो इनटू डेप्थ, लिसन, इनटू डेप्थ वी पुट डीएफएस अगेन है। देख, हम यहाँ पे वो नहीं कर रहे, हम यहाँ पे इटरेटिवली नहीं कर रहे हैं, वी डूइंग इट हियर रिकर्सिवली। ओके, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन बीएफएस एंड डीएफएस। ओके, नाउ ओके, तो 2 से 4 में गए। ओके, 1 से 2 में गए। ठीक है, अब 2 से 2 क्योंकि अब स्टार्टिंग वर्टेक्स आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, ओके, यहाँ पे हमने बी एफ एस। ठीक है, तो क्या अब 2 हम देखेंगे, क्या 2 विजिटेड है? नहीं है, तो प्रिंट कर दो 2 को। यहाँ प्रिंट हो गया 2, लिसन, यहाँ प्रिंट हो गया 2। ठीक है, अब फिर देखेगा। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा हम 2 को विजिट करेंगे, 2 को पूरा एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, 2 को हमने एक्सप्लोर किया, फिर 4 आया। अच्छा, यहाँ पे हम स्टैक नहीं बना रहे हैं। देखो, बाय रिकर्सिवली कॉल, बाय रिकर्सिवली द स्टैक इज ऑलरेडी मेड बाय द कंपाइलर, तो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। ओके, अपने आप ही ये स्टैक में पुश हो जाती है चीज़ें। ओके, फिर 4 को एक्सप्लोर किया, फिर ऐसे ही 3 को एक्सप्लोर किया। 3 में ना 1 विजिटेड है, 4 विजिटेड है, 2 विजिटेड है। ठीक है, अब जैसे विजिटेड हो गया तो क्या करा, विजिटेड हो गया, वापस आया। वापस आने के बाद जब हमने 3 को विजिट किया, तो वापस आने के बाद उसने 4 को पॉपअप किया, तो 4 को विजिट करेगा पूरा जो रह गया होगा। तो 6 को विजिट किया, फिर 5 को विजिट किया। ये कब तक चलता जाएगा? ये अपने आप ही चलता जाएगा, तो स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाएगा, स्टैक एम्प्टी। So yeah, there's a difference between BFS and DFS. BFS and DFS. Okay, that's it. Bye bye.